everyone, welcome to my channel Sophia Craft and Study. This is Decorate of Education JNCT of Delhi's worksheet. Class is 6. It is only for class 6 students. It's taken from the subject mathematics and we will learn for the fractions equivalent like and unlike fractions. And it is worksheet 19. It is a fraction. Yes, it is a fractions. 1 by 2, 2 by 4 and 3 by 6. It has two parts has right at denominator and one colored shaded part are 1. It has denominator. And next is 4 part. It has 4 parts, 1 2 3 4. It has 4 parts and right in a denominator and its shaded part are 2 and it has right in denominator. And next is 1 2 3 4 5 6. 6 parts of the shape and its right is denominator and it has shaded part are 3 and right in denominator. Next is 1 by 2 is equal to 2 by 4 is equal to 3 by 6. It has what? Oh, 1 by 2 and 2 by 4. It's multiply by 2 multiply by 2. Answer is 2 ones are 2 and 2 twos are 4. Yes, that says answer. And next is multiply by 3. 2 multiply by 3. Answer is 3 ones are 3 and 2 threes are 6. Yes, it is a answer. Up next is note. Next is note. Note is equivalent fractions are fractions that look different but have the same value. इक्वलेंट फ्रैक्शंस जो होते हैं वो फ्रैक्शंस देखने में डिफरेंट लगते हैं बट वो सेम होते हैं. नेक्स्ट इज 1 बाय 2 2 बाय 4 2 बाय 4 इज इक्वल टू 2 बाय 4. इट्स तो 2 बाय 4 2 बाय 4 एट it's multiply 2 1 multiply 2 and 2 multiply 4. That's answer is it says 1 and 2 multiply that 2 and multiply are 2. It has same denominator same and multiply. That's answer is 2 ones are 2 and 2 twos are 4. 2 by 4. Answer is 2 by 4. 2 by 4. Okay. So that's answer is 2 by 4. Okay. 2 by 4 and is equal to 3 by 6. Multiply 3 multiply 3. 3 1 are 3 3 3s are 9 and 6 1s are 6 6 to 12 6 3s are 18. No, it's wrong. 1 by 2 it's multiply 1 multiply 3 2 multiply by 3 and 2 multiply by 3. Answer is 1 multiply by 3 is equal to 1 3s are 3 and 2 multiply by 3 is 3 1s are 3 3 2s are 6. Answer is 3 and 6. Yes, it is a right answer. Next is 1 minus 2 is equal to 2 minus 4. Divided 2 by 4 divide by 2 4 by 4 divide by 2. Answer is 1 by 2. Next is 3 by 6. 3 by 6 3 divide by 3 6 divide by 3. Answer is 1 by 2.
Next is, to find an equivalent fractions of a given fractions, we can multiply or divide both the number and the denominator of a given fraction by the same number other than 0. To find an equivalent fractions, जब हम इक्वलेंट फ्रैक्शन को ढूंढते हैं, जो हमारा फ्रैक्शन दिया रहता है, जब हम उसे ढूंढते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं. अच्छा, तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम अपने क्वेश्चंस, अपने फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम डिवाइड करते हैं तो अपने आंसर से डिवाइड करते हैं. ओके, वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं एंड डिवाइड भी कर सकते हैं द नंबर एंड द डेनोमिनेटर गिवन फ्रैक्शंस बाय द सेम नंबर. जब हम आंसर निकालते हैं तो हमारा सेम नंबर ही आता है, ज़ीरो को छोड़ के, अदर देन ज़ीरो, ज़ीरो नहीं आता है. तो इसके बाद नेक्स्ट है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस. क्या है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस? देख लेते हैं क्या है. लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस आर टू ग्रुप्स ऑफ फ्रैक्शंस. इसमें आपको टू ग्रुप्स दे रखे हैं. अब आपको इन्हें क्या करना है, अच्छे से रीड करना है और थोड़ा सा समझ लेना है. ओके, समझ लेते हैं क्या है. फर्स्ट इज 3/5, 1/5, 2/5, 4/5, and 6/5. Second is 3/4, 5/6, 1/3, 4/7, 9/9. In group, first is the denominator of each fractions are 5. The denominators of the fractions are equal. The fractions with the same denominators are called like fractions. The denominator of each same. इसमें जो आपको डेनोमिनेटर दिख रहे हैं ये 5 है, फिर 5, 5, 5, 5, तो ये क्या है, ये हमारे सेम डेनोमिनेटर है. क्या है, सेम है, पूरा सेम है, इक्वल है, बराबर है ना. द फ्रैक्शन विद द सेम डेनोमिनेटर, इस फ्रैक्शन में सबके सेम डेनोमिनेटर हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं. क्या कहते हैं इन्हें, लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं. फिर उसके बाद 4/6, नहीं सॉरी, अब नेक्स्ट देख लेते हैं. इस सेंटेंस में पढ़ेंगे तभी ना पता चलेगा. द डेनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शंस आर डिफरेंट. द डेनोमिनेटर्स ऑफ द फ्रैक्शंस आर डिफरेंट. द फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डेनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस. जिसके डेनोमिनेटर अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे, वो हमारे होते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस. तो यहाँ पे होगा UNLIKE अनलाइक, FRACTION, वो क्या होते हैं हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं. समझ गए, दोबारा समझाऊँ? अच्छा ठीक है, मैं दोबारा समझा देती हूँ. जिसके डेनोमिनेटर सेम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस. क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन. जिनके डेनोमिनेटर सेम होते हैं उन्हें कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस, और जिनके डेनोमिनेटर अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उन्हें कहते हैं क्या कहते हैं उन्हें, UNLIK अनलाइक, FRACTION अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1. क्या है, क्वेश्चन नंबर 1. अब नेक्स्ट है हमारा, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. कर लेते हैं. राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग. ये जो आपको फ्रैक्शंस दे रखे हैं इनको हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में करना है. इसमें 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल बता देती हूँ. जैसे मैंने मान लीजिए 2/4 निकाला, इसका मुझे इक्विवेलेंट 3 फ्रैक्शंस निकालना है. तो मैं कैसे निकालूंगी, देखिए मैं बताती हूँ. मैंने निकाला, थोड़ा जूम करूँगी ना तो पूरी प्लेन पे जाएगा. देख लेते हैं, निकालूँ, ठीक है. तो मैंने क्वेश्चन क्या दिया, 2/4. अब मैं इसका निकालती हूँ.
2/4 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी किससे, मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2 से, क्योंकि अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा सेम ही आएगा। जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर क्या आया, 2 × 4, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। एक ये हमारा फर्स्ट इक्वलेंट निकल गया। अब सेकंड करना है तो दोबारा इसे यूज़ करेंगे, ऐसे कोमा लगा देना, फिर 2/4 दोबारा लिखना, फिर मल्टीप्लाई करके 3 लिखना ऐसे। फिर इसके बाद जब हम इसका आंसर निकालेंगे 3 2 ज़ा 6 और 4 3 ज़ा 4 × 4 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। ये इसका आंसर आया। फिर जब हम इसमें नेक्स्ट थर्ड निकालते हैं तो 2/4 दोबारा लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4, फिर इज इक्वल करके देख लेते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16। तो हमारे क्या क्या इक्वलेंट आए, हमारे इक्वलेंट आए 8/16, 4/8 एंड 6/12। क्या हमारे इक्वलेंट आए, फर्स्ट आया हमारा 4/8, क्या है 4/8, सेकंड आया हमारा 6/12 और थर्ड आया हमारा 8/16। तो आपको समझ आ गया ना इक्वलेंट कैसे निकालते हैं। ओके, समझ आ गया होगा, आई होप आपको समझ आ गया है। तो इसी तरह से हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो मैं बता देती हूँ सॉल्व करके 1/6 का। तो सबसे पहले 1/6 का सॉल्व करेंगे, है ना, कर लेते हैं सॉल्व। फर्स्ट है हमारा 1/6, क्वेश्चन हम ना किसी और कलर से भी लिखेंगे। 1/6 का करेंगे। 1/6 का आंसर देख लेते हैं क्या है। अब हम यहाँ पे आंसर लिख लेना, आप यहाँ पे इस तरह से आंसर लिख के फिर आप ऐसे लिख लेना, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। 1/6 सबसे पहले नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, 1/6 एरो का निशान, कलर चेंज, फिर दोबारा 1/6 उतारेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर हम करेंगे मल्टीप्लाई एंड दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 2 से करेंगे। मैंने बताया क्योंकि अगर हम 1 से करेंगे तो हमारा सेम आंसर आएगा। जो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2 1 ज़ा 2, 6 1 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 2 6 ज़ा भी 12। फर्स्ट हमारा आंसर क्या आया, 2/12। इसे ना मैं प्रिंट कर देती हूँ कि पता चल जाए। सबसे पहला हमारा ये आंसर आया। अब हम क्या लगाएंगे, अब हम लगाएंगे कोमा। क्या लगाएंगे, कोमा। कोमा लगाने के बाद रेड कलर से हम क्या लिखेंगे, अब दोबारा लिखेंगे 1/6 मल्टीप्लाई। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, 3 से। जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3 और 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 12, 6 3 ज़ा 18। अब क्या आंसर आ रहा है, 18। कौन सा है ये आंसर, 18। तो ये वाला आंसर है। अब नेक्स्ट, अब फिर उसके बाद फिर दोबारा नेक्स्ट निकालते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं, 1 2 हो गए, फिर दोबारा 1/6 उतारेंगे, फिर मल्टीप्लाई 4, ठीक है, 4 इस तरह से 4 उतारना। फिर उसके बाद इसका आंसर क्या आता है, 4 1 ज़ा 4, 6 1 ज़ा 6, 6 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। अब हमारा क्या आंसर आया, अब हमारा आंसर आया ये वाला। तो हमारे इसके 3 इक्वलेंट फ्रैक्शंस निकल गए। आपको कैसे लिखना है कॉपी में मैं बता दे रही हूँ। सबसे पहले फर्स्ट डाल लेना, ठीक है, ये लिख लेना, नीचे आंसर डाल के फिर ये पूरी लाइंस लिखना, आपको सर्कल नहीं लगाना है, ठीक है। फर्स्ट बता दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा बी 2/7। क्या है, 2/7 कर लेते हैं, 2/7 का। ओके, 2 डाल के लिखेंगे। अब 2/7 का एरो बना देंगे। ऐसे एरो बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, 2/7 लिखना है, दोबारा मल्टीप्लाई 2। आंसर हमारा क्या आया, मैं आपको पूरा एक करके दिखा देती हूँ क्योंकि मैंने आपको एक बता दिया है तो आपको पूरा आ ही गया होगा, है ना। हाँ, तो इसका आंसर है हमारा ये वाला। सबसे पहले हमने इसको इस तरह से, जैसे मैंने पहले वाला सॉल्व कराया था इसी तरह से मैंने इस वाले को भी सॉल्व किया है। फिर उसके बाद मेरा थर्ड
थर्ड है अब हमारा, क्या है अब हमारा थर्ड है हमारा 3/5। तो 3/5 को भी इस तरह से करेंगे, कर लेते हैं इस तरह से 3/5 को। तो इसका हमारा आंसर है ये वाला। 3/5 को भी हमने इसी तरह से फर्स्ट की तरह करा है। तो अगर आप फर्स्ट अच्छे से समझ लेंगे तो आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी क्वेश्चन का आपको आसानी से आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा है क्या। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है हमारा नेक्स्ट? क्वेश्चन नंबर 2, यस क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, 4/9 का है। तो अब हम इसे करेंगे 4/9 का। अब इसे कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब देख लीजिए, अब इसका भी हमारा आंसर इसी तरह से आ गया है। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। आइडेंटिफाई द लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें अनलाइक और लाइक फ्रैक्शन निकालना है। ये बहुत सिंपल है, मैं आपको इसे आसान आंसर दिखा देती हूँ। ये है हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 2 का। आइडेंटिफाई द लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, ये हमारे क्वेश्चन है। अब इसमें हमें क्या करना है, हमने क्या सीखा था, ये तो हमारा अनलाइक है और ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी अनलाइक है, लेकिन इसमें आइडेंटिफाई करने बोला, इस पूरे में से ढूंढने बोला। तो लाइक फ्रैक्शन इसमें 7 7 और 7 7 हो जाएगा, 1/7, 2/7, 4/7, 5/7, और अनलाइक हो जाएगा 2/5, 3/8 और 4/9। अब नेक्स्ट भी इसी तरह से लाइक फ्रैक्शन 4/11, 5/11, 7/11, 6/11। अनलाइक फ्रैक्शंस है हमारा 6/5, 11/17, 5/7 और 9/90। तो बच्चों यहाँ पे हमारी वर्कशीट होती है कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट कुछ ना कुछ लिख के भेजिएगा। तो ओके, बाय बाय एंड थैंक यू।